Plants around us. Chapter number 4 of class 4th. Hello everyone, welcome. So, in the previous episode, we have completed our third chapter. Yes, we have completed it. As in previous chapter, we have studied about the flowers and the fruits. So, the fourth chapter is plant around us. So let us start it, and before starting, like the video and subscribe the channel so you get the latest notification first and be the first viewer of our videos. So what is the chapter is telling? What does it means? Plants means पौधा, around means हमारे, आसपास, हम अराउंड मीन्स आसपास और अस मीन्स हमारे. तो हमारे आसपास के पौधों के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में अच्छी तरीके से जान लेंगे ये है क्या. तो चलिए, होप करती हूँ कि आप लोग आज के एपिसोड के लिए एकदम प्रिपेयर हैं. सो लेट अस स्टार्ट इट विदाउट एनी टाइम. ओके. Yes, terrestrial plants. Firstly, we will study about terrestrial plants. Now, what is terrestrial plants? Plants which grow on land are called terrestrial plants. So, the question arises, terrestrial plants होते क्या हैं? Terrestrial plants वो होते हैं जो land पे grow करते हैं, which grow on the land. There are many different type of terrestrial plants. You can imagine that we have different type of plants. Similarly, the terrestrial plants also have different types. So, first one is plant on hills. Second is plant on plains. Third one is plants of hot and wet region. Fourth is plant of marshy area. And fifth is plant on desert area. So this much topic we will cover in this episode, and the rest of the other remaining topic we will cover in the second episode, means next episode. So let us firstly study about the plant on hills. So what is the meaning of the topic? The topic is plant on hills, but what does it mean? Plants पौधे, पहाड़ों के पौधे. अब हम लोग ऐसे पौधों के बारे में जानेंगे जो हिल्स पे ग्रो होते हैं, जो पहाड़ों पे ग्रो होते हैं. Now, pine, cedar and fir are some of the plants which grow on the hills. Pine, cedar, fir कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो पहाड़ों पे उगते हैं. ये प्लांट्स टॉल होते हैं, स्ट्रेट होते हैं and generally have a conical shape. These tall, straight and green conical trees make hill appear green and beautiful. Now, what is conical shape? Have you ever seen the birthday cap? I know, you must have seen the birthday cap. What does it having a shape? वो कौन सा shape लेता है? It takes shape of a cone. The word cone make the word conical. जो हमारा वर्ड कोन है वही कोनिकल बनाता है. We say that birthday cap is in cone shape, but the trees are in conical shape. I hope you are understanding. अब conical भी एकदम वैसे ही होता है. Now you can see in the images, the first image of pine, second image of cedar and last image of fir. You can easily find the image of fir having the shape like the birthday cap. It is having a shape like birthday cap. It means it is having the shape like conical. Yes, it is a conical shape, and you can also notice in the pine tree, first image of pine, तो आप उसमें देख सकते हैं कि उसकी भी इमेज सेम शेप एकदम उसी की तरह है. अब जो इनकी लीव्स होती हैं वो नैरो होती हैं. What do you mean by narrow? Narrow and needle means पतली होती हैं and बहुत नुकीली होती है. आपने तो निडल देखी होगी, सुई, तो सुई भी एकदम
बहुत पतली होती है, तो उसी तरीके से वो भी लीव्स भी ऐसी ही होती है। और ये जो कोनिकल ट्रीज हैं, ये स्नो को उनके ऊपर डिपॉजिट नहीं होने देते। अब लेट अस अंडरस्टैंड बाय द सम फैक्ट एंड अ स्टोरी. So the hills having the cold temperature, as you know, the hills are having the cold temperature. अब hills की जगह पे cold temperature होता है, we understand it, but how it has happen? अब देखिए, जहाँ पे cold temperature रहेगा वहाँ पे snowfall जरूर होगी. हिली एरियाज में स्नोफॉल होती हैं, नॉट इन प्लेन्स. हिली एरियाज में स्नोफॉल होती है. तो अब वहाँ पे जब स्नोफॉल होंगी तो वो हमारी स्नोफॉल कहाँ जाएंगी? ट्रीज पे आएंगी एंड द सरफेस पे आएंगी हिल्स के. तो अब जब वो ट्रीज पे जाएंगी, अगर वो ऐसी गिरती गई, अगर ट्रीज हमारे क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, तो क्या होता, वो गिरती जाती और एक टाइम ऐसा आता कि हमारे ट्रीज को एकदम ढक देती, उनको एकदम कवर कर लेती स्नो के साथ. अब क्या होता, अब हमारे प्लांट को ना ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाता, इसलिए वो मर जाते. अब इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि अब हम अपना कोनिकल शेप रखेंगे तो सारा कुछ नीचे चला जाएगा. मीन्स if you throw something on the birthday cap, it will go down. मेरी इस पे एक वीडियो भी है इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझने के लिए, लिंक कमेंट बॉक्स में गिवन है, तो आप उसमें प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस लिंक को क्लिक करके इस कंसेप्ट को और भी अच्छी तरीके से समझ लीजिए. उसमें मैंने एक पेपर से कोन बनाया है एंड उसके ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट्स डाली हैं, तो आप आराम से देख सकते हैं कि हाउ इट इज हैपन. ओके, सो इसलिए इनकी लीफ नैरो एंड निडल होती है और इनका जो शेप होता है वो कोनिकल होता है. सो लेट अस मूव फर्दर टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्लांट ऑन plains. So what do you mean by the topic? The topic is plant on plains, but what does it having the mean? अब देखिए, plants पौधे, plain means flat. अब हम लोग रहते हैं plains पे एंड बहुत सारे लोग हिल्स पे भी रहते हैं, तो अब हम लोग प्लेन्स पे रहते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि वहाँ पे पीपल है, बैनियन है, मैंगो है, साल है, शीशम है. अब ये जो कुछ ट्रीज है ना, पीपल है, बैनियन है, मैंगो है, ये सारे ट्रीज प्लेन्स पे ग्रो होते हैं. दे ग्रो इनटू ट्रीज एंड हैविंग मेनी ब्रांचेस. अब ये प्लेन्स पे तो ग्रो होती हैं, पर ये बहुत घने होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, उनके पास बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं. अब जब ब्रांचेस हैं तो लीफ तो ऑलरेडी होंगी. फर्स्ट इमेज इज ऑफ पीपल कुछ ऐसा दिखता है. सेकंड इमेज बैनियन की है, बैनियन का ट्री कुछ ऐसा दिखता है. फिर मैंगो है, मैंगो का ट्री तो आप सबने ही देखा होगा. फिर हमारा साल है एंड लास्ट इमेज ऑफ शीशा. अब ये कुछ ऐसे ट्रीज हैं जो प्लेन्स पे पाए जाते हैं और इनके पास बहुत सारी ब्रांचेस होती है, इनके पास बहुत सारी लीव्स होती हैं. ये बहुत घने होते हैं. So let us move to our next topic. Before moving, I hope कि अभी तक मैंने आप लोगों को जितना समझाया, आप लोगों को बहुत अच्छे से कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा. तो चलिए, अगर आपको कुछ भी आया नहीं समझ है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया, तो आप एक बार जो भी आपका डाउट है आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. अगर आपको कोई भी चीज़ अगर नहीं आया होगा समझ में, अगर आपको कुछ भी एक भी चीज़ रिमेनिंग है जिस पे आपको डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ लीजिएगा. आई विल डेफिनेटली गिव योर क्वेश्चंस आंसर. So let us move further, and before moving further, yes, hit the like button and subscribe the channel if you don't have right. Do it. Now plants of hot and wet region. अब हम लोग हॉट एंड वेट रीजन के प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं. अब फर्स्ट इमेज रबड़ की है, सेकंड इमेज टीक की है एंड लास्ट इमेज कोकोनट की है. सो फर्स्ट इमेज में आप लोग देख रहे हैं वहाँ से कुछ वाइट कलर का निकल रहा है. एक्चुअली ये रबड़ होता है.
अब जैसे कि हमारे प्लांट्स है, रबर है, टीक है, कोकोनट है, ये हॉट एंड वेट रीजन्स में पाए जाते हैं। इनके पास बहुत सारी लीव्स होती हैं और ये बहुत जल्दी जल्दी अपनी लीव्स छोड़ते भी हैं, गिराते भी हैं और बहुत जल्दी जल्दी ले भी लेते हैं, मीन्स उगा भी लेते हैं। अब तो इसलिए हम इन्हें एवरग्रीन ट्रीज कहते हैं, क्योंकि ये कभी भी जल्दी खाली नहीं होते। ओके, तो अब जैसे कि पेपर है, कॉटन है, राइस है, बनाना है, ये भी हॉट एंड वेट रीजन में ग्रो होते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट्स ऑफ मार्शी एरिया। मार्शी एरिया में नमी होती है। मैंग्रोव जो है वो मार्शी एरिया में ग्रो होते हैं, तो ये मैंग्रोव जो है मार्शी सॉइल में ग्रो होते हैं। ओके, ये जो हमारे मैंग्रोव्स हैं ये मार्शी सॉइल में ग्रो होते हैं, and these plants develop special root for breathing, as their main underground root do not get sufficient oxygen from the soil. Portion of their roots come out of the soil above the water level to take oxygen from air. These roots are also called breathing roots. They are also known as aerial. कंसेप्ट बहुत छोटा सा है पर इसका मीनिंग समझना इम्पोर्टेंट है बहुत। तो अब जो हमारी मैंग्रोव्स होती हैं, जो भी प्लांट्स मार्शी एरिया में ग्रो होते हैं, उनके पास स्पेशल रूट होती है। जैसे हमारे पास हमारी नोज है जिससे हम ब्रीथ करते हैं, अब उनके पास, प्लांट्स के पास, उनका क्या है, रूट है ब्रीथ करने के। अब रूट्स को क्या है, अब उनको ना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो कैसे जिएंगे। जैसे अगर हमें नहीं ऑक्सीजन मिलेगा तो कैसे जिएंगे, हम लोग नहीं जी पाएंगे। वैसे प्लांट्स हैं, उन्हें ऑक्सीजन, जितना उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होता है उतना नहीं मिल पाता। तो आप क्या करते हैं, कहते हैं कि रूट्स थोड़ी इनको ऊपर आ जाती हैं, एयर में आ जाती हैं, ताकि वो एयर से ऑक्सीजन ले सकें। इसीलिए हम इनकी रूट्स को ब्रीथिंग रूट कहते हैं और ये एरियल रूट के भी नाम से जाना जाता है। सो होप करती हूँ कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कुछ भी नहीं आया समझ, अगर आपको कुछ भी नहीं आया समझ, वन थिंग आपको नहीं आया समझ कोई भी चीज, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। सो लेट अस मूव फर्दर। यस, प्लांट्स ऑफ डेजर्ट एरिया। अब प्लांट ऑफ डेजर्ट एरिया में क्या होता है, जो कैक्टस है ये डेजर्ट एरिया में ग्रो होते हैं। अब इनके पास नहीं कैसे सरवाइव होते हैं, आपको तो पता ही होगा, डेजर्ट एरिया में रेत रेत होता है, तो कैसे ग्रो हो जाते हैं प्लांट्स, वहाँ पे कैसे ग्रो हो सकते हैं जहाँ पे बहुत कम वाटर मिलता है। हाउ कैन दे, सो दे कैन सर्वाइव in soil that has very little water, as they have green stem and well developed roots. Fresh stem store water, therefore it is soft and fleshy. Cactus plant has spines instead of leaves. अब जो हमारे कैक्टस हैं ये डेजर्ट एरिया में ग्रो होते हैं और इनके पास, इनके ऐसे सॉइल में सरवाइव करते हैं जहाँ पे बहुत थोड़ा वाटर होता है। एक्चुअली होता क्या है, जो उनका जो स्टेम्प होता है ना वो ग्रीन होता है और उनके पास वेल डेवलप्ड रूट्स होती है। अब जो उनका स्टेम्प होता है वो वाटर को स्टोर करके रखता है, इसीलिए वो सॉफ्ट होता है, फ्लैशी होता है। अब आप ये सब मत समझने का कि सॉफ्ट है को हम उसे टच कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास, जैसे हमारे नॉर्मल प्लांट्स के पास लीफ होती हैं पर उनके पास स्पाइंस होते हैं। स्पाइंस मीन्स कांटे होते हैं जो आपको चुभ भी सकते हैं, तो डोंट ट्राई दिस। सो होप करती हूँ कि आपको सब क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं आया समझ तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, एंड वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय एंड हैव अ गुड डे। द नेक्स्ट एपिसोड वी विल कंटिन्यू ऑफ दिस। बाय बाय।